Yes, good afternoon, all of you. A warm welcome to the second session of our program, that is short-term training program on innovation and incubation of startups, paving the way for Atmanirbhar Bharat. For this session, we have Mr. Angraj Swami, who is the founder of a startup known as EcoRap. So we will be hearing his wonderful and miraculous journey from him only. But first of all, I should introduce him. So he hails from a small village situated around 100 kilometers away from Jaipur city. Despite having not a school education in his village, he had to walk around, I mean to say walk literally, around 15 kilometers every day to complete his basic educations. Then he moved to New Delhi for higher studies in 2011. He passed an entrance exam and got admission into the DU, that is Delhi University, and completed his higher education in 2014. In 2017, he moved to Jaipur and started working to develop a model which can bring segregation culture in the country. So this is how the EcoRap, that is Eco Waste and Resource Action Program, came into existence. With this little and short introduction, I hand over session and request Mr. Angaraj Swamiji to please continue with this session. Yeah. Thank you, Kunal, and thank you all of you for having me on such a big platform. And so Kunal already have said a lot of things about me, but basically the thing is that we came so far, or we have made a lot of mistakes in terms of exploitation of natural resources, environment. So we need some certain, or we need a, we can say that a movement to recover all these things, or to recover all the mistakes we have made till now. So uh, EcoRap is basically a model on waste management, because what we think, or what I think, is that uh, waste is a issue not for India only. As we grown, as we our country will get developed, it become a huge problem for all of us. Uh, Everybody is okay with Hindi if okay. So in waste segment actually होता क्या है कि आप अपने लैंग्वेज में होते हैं तो थोड़ा कंफर्ट जोन में होते हैं और चीजों को ज्यादा अपडेट करते हैं. सो आप देखेंगे कि यूएस जैसी कंट्री के लिए वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा इश्यू है बजाय इंडिया जैसी कंट्री के लिए, बिकॉज अभी भी हमारे लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम है. अगर डिस्पोजेबल इनकम कम है तो वेस्ट जनरेशन भी कम रहता है. किसी और सेगमेंट के संदर्भ में मैं ये बात करूं, जैसे एजुकेशन हो गया, या सोसाइटी में हार्मनी हो गया, पीस हार्मनी हो गया, तो उस केस में हम ये सोच लेते हैं और अपने आप को थोड़ा सा दिलासा दे सकते हैं कि एज country will be literate or some education infrastructure will be into the society, तो उस टाइम पे लोग समझ जाएंगे और ये सब इश्यूज खत्म हो जाएंगे. पर वेस्ट सेगमेंट में ये उल्टा है. जैसे जैसे हम लोग विकसित होंगे, हम डेवलप होंगे, हमारा वेस्ट जनरेशन वाला प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा. सो ये मोटा मोटी जो मैं वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सोचता हूँ, उसको लेकर एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है. तो मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी को लेकर कि मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ अभी तक मैं पहुँचा हूँ मेरी टीम के साथ, और इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, चाहे वो मेरी लाइफ हो, एजुकेशन हो, या फिर इस वेंचर को यहाँ तक लाने में जो भी स्ट्रगल्स हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा. क्योंकि जो जर्नी के थ्रू गुजर रहा होता है उन्हें पता नहीं होता है कि मेरी लाइफ में भी क्या इंस्पिरेशनल है, और या मेरी लाइफ से लोग क्या सीख सकते हैं. तो ये लोग ये सब चीजें आप पे हैं. मैं अपनी एक बेसिक सी कहानी आपको आपके साथ साझा करूंगा, सुनाऊंगा आपको. आप उसमें क्या आपको लगता है कि कहाँ से आप इंस्पायर हो सकते हैं और कहाँ आप मेरे से बेटर कर सकते हैं, वो आप सब पे निर्भर. सो मेरा गांव जो है वो यहाँ जयपुर शहर से
100 किलोमीटर दूर जब अपन सीकर साइड की तरफ जाते हैं तो जो सालासर बालाजी धाम तो उस तरफ है। तो बेसिकली रेगिस्तान है, रेतीला इलाका है। एग्रीकल्चर हमारा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू या आप कह सकते हैं हमारा फ्रंट लाइन बिजनेस नहीं है। क्योंकि हमारे पास पानी पीने के लिए भी अभी काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो एग्रीकल्चर के लिए वो अवेलेबल नहीं होता है। तो 12वीं तक जो भी मैंने स्टडी की वो मेरे गांव से 15 किलोमीटर के आसपास दूर एक स्कूल था, तो वहाँ पे रोज हम लोग पैदल जाया करते थे और रोज वॉकिंग डिस्टेंस वो हमारी इतनी होती थी। तो वहां तक मैंने अपना एजुकेशन है 12वीं तक का कंप्लीट किया। 2011 में या 10 में कॉमनवेल्थ गेम्स जब स्टार्ट हुए तो उस टाइम पे दिल्ली पुलिस की एक रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन था, तो उस सिलसिले में मैं अपने दोस्तों के साथ की क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो गवर्नमेंट जॉब पाना वहाँ का एक बेस्ट वे होता है कि आपकी लाइफ सेट हो गई है, आप वहाँ पे अब सेटल हैं और आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो हमारा भी वहाँ तक ध्यान यही था कि जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं और अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो बड़ा बेटर फ्यूचर है। तो उस सिलसिले में मैं गया था वहाँ पे, तो दिल्ली पुलिस में तो सिलेक्शन हो नहीं पाया मेरा और मैंने 2 या 3 दिन का प्रोग्राम रखा कि मैं पूरा दिल्ली देखता हूँ एक बार। तो नॉर्थ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय हम गए और वहाँ नंबर ऑफ कॉलेज देखे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, वहाँ पे लाइफस्टाइल देखी लोगों की और वहाँ के एल्यूमिनाइज जो भी कॉलेज हैं वो काफी उन लोगों को उनकी पीआर बहुत करते हैं अपने जो भी एल्यूमिनाइज हैं। जैसे जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे मनोज वाजपेयी, सलमान खुर्शीद और काफी बड़े बड़े लोग पढ़े थे, तो उनके जो पोस्टर्स हैं वो अपने गेट के बाहर लगा के रखते हैं बहुत से कॉलेजेस। तो मैं मुझे काफी वो इम्प्रेसिव लगा और मैं खुद भी उससे इम्प्रेस हुआ कि इतने तो बड़े लोग यहाँ पे पढ़े हैं और अगर मेरा एडमिशन ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में हो जाता है तो मेरे लिए बड़े फक्र की बात है। सो मैंने नेक्स्ट ईयर ट्राई किया कि मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाए और मेहनत की तो दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ। वहाँ से मतलब एक कह सकते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट था और मेरी लाइफ में कुछ जो भी चेंजेस आए वो वहीं से स्टार्ट होते। तो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ 12वीं तक, तो वहाँ पे थोड़ा इंग्लिश मीडियम और यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा ही रिजिड टाइप में है। अगर मैं अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ तो आपके पास फिक्स कोर्स होता है कि आपको यहीं से पढ़ना है। एक बुक होती है जिसमें आपको पूरा समराइज किया होता है कि आपको 12th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ना होता है। तो कॉलेज का भी कुछ सेम सा ही स्ट्रक्चर है अगर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूँ। वहां जाने के बाद मुझे काफी चैलेंजेस फेस करने को मिलते थे, जैसे मुझे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़नी है तो उसके लिए मुझे डिफरेंट बुक्स का रेफरेंस दिया जाता था। जैसे बहुत से ऑथर तो ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है और स्पेलिंग थोड़ा वो डिफरेंट करता है। तो एक मैक आर्थर बाइजर की बुक होती है जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसमें हमें पढ़नी है। तो लाइब्रेरी से वो बुक लेना ही मेरे लिए 2 या 3 दिन का टास्क था, क्योंकि मुझे वो उसको स्पेल कैसे करते हैं, स्पेलिंग कैसे होती है उसकी या उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो उसमें काफी डिफरेंस थे। तो वहां से स्ट्रगल स्टार्ट होता है। सेकंड ईयर आते आते मैंने जितनी मेहनत हो सकती थी मैंने की। सेकंड ईयर में या सेमेस्टर थर्ड में मैं काफी अनुकूल हो गया था वहाँ का जो भी पर्यावरण है और वहाँ का जो भी इकोसिस्टम है, तो उसके काफी अनुकूल मैं हो गया था। और मैंने वहाँ पे इलेक्शन में या जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वहाँ पे भी काफी एक्टिव था। और 2014 में यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर के आसपास में मेरे जो कजन है वो रामजस कॉलेज की प्रेसिडेंट थे और पॉलिटिकल एरिया में भी हम काफी एक्टिव वहाँ पे हो गए। और उस दौरान हमने जो भी एलुमनाई थे हमारे एनुअल फेस्ट के दौरान उनको बुलाया और वहाँ पे जो एक्सपोजर हमें मिला और चाहे वो इनोवेशन को लेकर हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल को लेकर हो या थॉट प्रोसेस को लेकर हो, तो वो काफी मैच्योर था। और जो चीजें हमें लगता था कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होता है, वो वहां जाके मुझे पता लगा कि आप जिस अवस्था में है, जिस पोजीशन में है, आप वहां से भी वो सब अचीव कर सकते हैं जो आपको लगता है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी कर सकता है। सो वहां से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मुझे भी कुछ अच्छा करना है। और थोड़ा ड्रीम जो अभी तक एक गवर्नमेंट जॉब तक सीमित थे वो भी, उनमें भी थोड़ा सा
मैंने एक्सप्लोर किया चीज़ों को, तो कुछ और बेटर करने का मेरा मन था। तो ये सब होने के बाद वहाँ पे एक अच्छी नेटवर्किंग हो गई थी ड्यू टू जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमारी थी। तो और वहाँ से मेरा जो आना-जाना था वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, अलीपुर जिसको बोलते हैं, जहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय का स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, और उससे आगे जाएँगे तो आपको मूरथल है, जहाँ के पराठे काफ़ी फेमस हैं और लोग पराठे खाने जाते हैं। तो उसके जस्ट उससे पहले एक मुकरबा चौक फ्लाईओवर आता है, जिसके पास में आपको देखेंगे तो 2 बड़े-बड़े डंपिंग यार्ड हैं। तो मेरे महीने में या 3 साल के अंदर जितना भी टाइम था, उस दौरान मेरी यात्राएँ उस तरफ से होती रहती थी, और मैंने देखा कि एक डंपिंग यार्ड का ट्रीटमेंट क्या अभी गवर्नमेंट देख रही है। सो उस डंपिंग यार्ड पे जो कि अपनी पूरी कैपेसिटी से ओवरफ्लो कर रहा था, उसपे गवर्नमेंट मिट्टी डालती है, मिट्टी डाल के उसपे कुछ पेड़ लगा दिए जाते हैं। तो वो उसका सॉल्यूशन था जो गवर्नमेंट उस टाइम पे कर रही थी। और मुझे ये बात काफ़ी बुरी लगी, क्योंकि एज़ वी आर लिविंग इन ए डेज़र्ट एरिया, तो वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़, क्योंकि रेगिस्तान में वैसे भी नेचुरल रिसोर्सेज़ को का इतना एक्सेस मिलता नहीं है, जहाँ जो लोग वहाँ पे रिसाइड करते हैं। सो मुझे काफ़ी ये अच्छा नहीं लगा, मतलब सिस्टम देख के लगा कि इसका कुछ बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। तो 2000 उसी टाइम से मेरा माइंडसेट था कि मैं वेस्ट रिसाइक्लिंग पे कुछ करूँगा, या डंपिंग यार्ड का सॉल्यूशन मैं कुछ ल लेके आऊँगा, और इस पे जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने किए या रिसर्च मैंने की, तो उससे मुझे पता लगा कि ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है, और जितना डेवलप्ड नेशन है उसके लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम, उतनी मेजर प्रॉब्लम है। और मैंने हाउ टू डिस्पोज़ वेस्ट, इस पे भी काफ़ी रिसर्च किया। तो मुझे पैटर्न ऑफ अमेरिका का जो पता लगा कि अमेरिका कैसे वेस्ट को डिस्पोज करता है, तो ये है कि अमेरिका अपने से एक कमजोर नेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपना वेस्ट है डंपिंग के लिए भेज देता है। अब जैसे आप अ, अभी तो मैं कह नहीं सकता, पर 2015-16 का पैटर्न आप देखेंगे तो हम अमेरिका या अमेरिका से ज्यादा, अमेरिका के आसपास या डेवलप्ड नेशन जिनको हम कह सकते हैं, वहां से हम उनका कंटेनर्स इंपोर्ट करते हैं जो वेस्ट से भरे होते हैं, और अपने इंडिया में हम उनको डंप करते हैं। उसके लिए अमेरिका से कुछ पैसा हम लेते थे, और डेवलप्ड नेशंस जो है उनसे हम पैसा चार्ज करते हैं। तो ये मोटा मोटा जो मेरी रिसर्च स्टडी थी वो ये कह रही थी, और मुझे लगा था कि ये बड़ा मेजर इश्यू है। तो इसी पे काम को लेकर इसी पे मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहा। सो 2017 में मैंने पेपर रिसाइक्लिंग यूनिट स्टार्ट की दिल्ली में, क्योंकि मेरे कनेक्शन अच्छे थे। तो मुझे फंडिंग वहाँ पे इन इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट फंडिंग मुझे वहाँ से रिसीव हुई, और उससे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो एट दैट टाइम वी यूज्ड टू इंपोर्ट पेपर वेस्ट फ्रॉम चाइना। हम चाइना से पेपर रिसाइकल करने के लिए उनका वेस्ट पेपर इंपोर्ट करते हैं। इन 2016 16 और 17 इंपोर्ट जो हम करते थे उस पे इंपोर्ट ड्यूटी एक्सटेंड कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो जो पेपर वेस्ट हम इंपोर्ट कर रहे थे वो हमारे लिए काफी महंगा हो रहा था, और द मार्जिन जो भी थे फाइनल प्रोडक्ट पे वो काफी लो हो गए थे। तो उसे सेल्फ सस्टेनेबल या फाइनेंशियली वाइबल रखना काफी मुश्किल था हमारे लिए। सो हमने वो बिजनेस बंद किया। बंद करने से पहले, मतलब बंद पे तो खैर डायरेक्ट नहीं आऊंगा मैं, पर उससे पहले हमने सोचा, वी वर टू पार्टनर इन दैट बिजनेस, दैट वी थॉट ऑफ टू डेवलप ए लोकल सोर्स ऑफ दैट पेपर वेस्ट, कि हम इंडिया में ये पेपर वेस्ट कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं। तो इट वाज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोक्योर दैट वेस्ट पेपर। तो मैंने जो भी डंपिंग यार्ड्स थे, जितनी भी डंपिंग साइट्स थी, गाजीपुर, अलीपुर, तो इन सब डंपिंग साइट्स पे विजिट की, और जो नंबर ऑफ लोकल कबाड़ीज थे वो भी मैंने 100-200 के आसपास विजिट किए। तो मुझे एक चीज जो मोटा मोटी समझ में आई वो ये है कि recycling is not the core problem. The major bottleneck in the waste treatment is segregation at source. अगर आप वेस्ट को सोर्स पे सेग्रीगेट नहीं कर सकते तो उसका सॉल्यूशन इम्पॉसिबल है, जो आज मैं कहता हूँ। इसके अलावा जो भी सॉल्यूशंस इसके ऊपर आए, जैसे हमारे एमएनआईटी के प्रोफेसर हैं जिन्होंने वेस्ट मटेरियल से एक ब्लॉक तैयार किया था, जिसको ईंट बोलते हैं, ब्रिक जो बोलते हैं। तो उस पे भी मैंने काफी रिसर्च किया। इसके अलावा काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो वेस्ट
डंपिंग साइड से वेस्ट उठा के उसे रिसाइकलिंग या रिसाइकिल करने का को क्लेम करते थे। सो मेरा जो रिसोर्स है और मेरी जो रिसर्च है वो ये कहती है कि टेक्निकल प्रोफेसर हो या टेक्निकल पर्सन, उन लोगों ने टेक्निकल एस्पेक्ट पे बहुत अच्छा काम किया है, पर फाइनेंशियल वायबिलिटी की अगर हम बात करें तो वहां पे काफी मेजर इश्यू है। सो एज ए पर्सन मुझे अपने घर बनाने हैं, तो मैं मिट्टी की बनी हुई ईंट को खरीदना पसंद करूंगा क्योंकि वो मुझे सस्ती है। मैं ये कंसीडर नहीं करता हूँ कि जो उसके पास में जो ब्लॉक रखा है वो वेस्ट से बना है, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहा है। तो मेरे लिए वो इतना मायने नहीं रखता अगर वो रेट में थोड़ा अगर कॉस्टली पड़ता है। सो हमने इसी पे फोकस किया कि हम सेग्रीगेशन को कैसे इसमें लेके आ सकते हैं। सो इनिशियली हमने रेजिडेंशियल सेक्टर को टारगेट किया। सो ये जो मॉडल हमने रेडी किया था वो दिल्ली के इकोसिस्टम को ध्यान में रखकर रेडी किया था कि हाउ वी विल गो इनटू द मार्केट, और जिसको हम गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बोलते हैं। सो हमने इसे वहां से स्टार्ट किया, लेकिन बिकॉज यू आर टारगेटिंग ए मास, सो आपको रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होते हैं। और दिल्ली जैसे शहर में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो आप अगर पायलट स्टेज पे भी जाके एक छोटा सा एरिया भी आप कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे रिसोर्सेज चाहिए। सो हमने एक मिक्स और कह सकते हैं कि एक ऐसा सिटी, टायर 2 सिटी या टायर 3 सिटी चूज करनी थी जिसमें रिसोर्स कम हो और जहां हम कंट्रोल लॉन्च कर सके। बिजनेस में कंट्रोल लॉन्च एक एसेंशियल पार्ट होता है। जिस दिन आपने बिजनेस को लॉन्च किया उसमें आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप फिक्स टाइमलाइंस डिसाइड करते हैं कि मुझे किस टाइम पे क्या लॉन्च करना है। उसमें 10% 20% के डिफरेंसेस चलते हैं, बट आप 50% या 60% ऊपर नीचे हैं उसमें, तो उस टाइम आप बिजनेस मॉडल आपका फेल कर सकते हैं। सो इस सिनेरियो को ध्यान में रखकर मैं जयपुर आया, और जयपुर में मैंने अपनी कोर टीम बनाई जिसमें मेरे साथ मनोज है, चंद्रकांत है, दीपक है। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया। इसको हमने रेजिडेंशियल सेक्टर जो वैशाली नगर में हमने इसे लॉन्च किया। सो वहाँ पे हमने इनिशियली टारगेट किया हाई राइज अपार्टमेंट्स को, और लोगों को हमने समझाया कि हम आपको वेस्ट सेग्रीगेट करना है और हम आपका वेस्ट प्रोक्योर करेंगे। इनिशियली हम पे नहीं करते थे उनको कि हम आपका वेस्ट लेके जाएंगे, रिसाइकलिंग को देंगे। सो इनिशियली बहुत से लोग जो हैं वो उसमें इंटरेस्टेड थे और उन्होंने ऐसा किया भी। बट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी और बिजनेस के टर्म्स की मैं बात करूं तो पब्लिक पार्टिसिपेशन जीरो हो जाता है, बिकॉज वी आर इनटू सोशल इशू। सो बिजनेस पेन पॉइंट पे बिल्ड हो सकते हैं, पर सोशल इशू पे बिजनेस बिल्ड करना थोड़ा सा टफ होता है। सो अगर मैं पेन पॉइंट आपको समझाना चाहूँ, जैसे आप मोबाइल का अगर एग्जांपल लें कि मोबाइल आपकी नीड है, इसके बिना आप नहीं रह सकते, लेकिन वेस्ट ट्रीटमेंट हो ना हो आप रह रहे हैं, रहेंगे। हो सकता है कि बहुत से लोग जो डंपिंग यार्ड के पास से गुजरते हैं उनको लगे कि यार इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान आपको ये बोलेगा कि अगर इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो मेरी तकलीफें बढ़ जाएंगी। सो ये सोशल इशू है, सामाजिक मुद्दा कह सकते हैं इसे। ये पेन पॉइंट किसी के लिए नहीं है। सो पब्लिक ऐसे केसेस में पब्लिक पार्टिसिपेशन इनिशियली काफी अच्छा होता है, लेकिन टाइम के हिसाब से वो कम होते होते जीरो हो जाता है। सो वहाँ पब्लिक पार्टिसिपेशन काफी कम देखने को मिला। एंड सेकंड थिंग इज दैट फाइनेंशियली वाइबिलिटी नहीं थी। फाइनेंशियली वाइबिलिटी का मैं बताऊं तो जैसे आप किसी एक बिल्डिंग को कवर कर रहे हैं तो आपको पिकअप के लिए बुलाया गया है, तो आप 2 या 3 या 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अगर आप पिकअप भेज रहे हैं उसे, तो वहां पे फिक्स क्वांटिटी, एक फिक्स वॉल्यूम आपको मिलना चाहिए वेस्ट लेने के लिए, ताकि आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके। सो काफी 6 या 7 महीने के बाद हमने बिजनेस मॉडल को पिवट करने का सोचा, क्योंकि काफी चैलेंजेस इसमें थे। फाइनेंशियल वायबिलिटी हो या टेक इम्प्लीमेंटेशन हो या स्केलिंग हो, सो हमने इसको थोड़ा सा पिवट करने का सोचा और हमने बल्क वेस्ट जनरेटर्स को टारगेट करना स्टार्ट किया। बल्क वेस्ट जनरेटर का अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप
कमर्शियल किचन से ले सकते हैं, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, कैफे या और भी जो भी कमर्शियल फूड ग्रेड आइटम्स रेडी करते हैं वो कमर्शियल किचन में। सो वहां पे 2-3 चीजें। फर्स्ट थिंग इज दैट कि वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज ए मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप उनको ट्रेन कर सकते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए। वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए आप वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर सकते हैं, एंड देयर इज ए सेंट्रलाइज सिस्टम जिसको आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके साथ आप पेमेंट्स का लेन देन कर सकते हैं। सो हमने टारगेट किया ओरेका यूनिट्स को और उनको वेस्ट सेग्रीगेट करने के लिए बोला। उन लोगों ने भी काफी इंटरेस्ट लिया, बिकॉज दे ऑलरेडी फेसिंग सम इश्यू regarding to regular guidelines, government guidelines, because there exists a law which says that if you are a commercial entity, then you have to treat your waste on your own. Civic body can't help you in dumping. तो उस लॉ के हिसाब से इनको they have to treat their waste on their own. So we were playing the role of external or we strategic partner to these Oreca units और these commercial units की इकोरैप हमारी होटल का एक पार्ट है जो हमारा वेस्ट मैनेज कर। सो इन दिस वे वी गोट सम हेल्प इन स्केलिंग पार्ट, हमें जल्दी स्केल करने के चांसेस मिले और हमने 150 के आसपास होटल्स को कवर किया 1-1.5 साल के टाइम ड्यूरेशन, और इसको हमने फाइनेंशियली वाइबल भी बना दिया बिजनेस मॉडल को। सो I would like to share my screen with all of you. So, is it visible to all of you? Yes, it is visible. Okay. So हम इसे अपना ध्येय वाक्य भी कह सकते हैं और टैगलाइन भी कह सकते हैं, मेरा देश जीरो वेस्ट। सो दिस इज आवर मोटो और आवर एम। सो मास प्रॉब्लम इज दैट unsegregated waste is bottleneck in treatment of municipality solid waste, जिसकी भूमिका और मोटी मोटी फिल्म मैंने आपको बता दी है कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता। लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं तो मुझे कोई एक ऐसा कस्टमर सेगमेंट पकड़ना होता है, यूजर सेगमेंट पकड़ना होता है जिसके लिए ये प्रॉब्लम पेन पॉइंट है। सो होटल और होरेका यूनिट्स आर द पेन पॉइंट यूजर्स। सो हमने वहां पे उनको टारगेट किया, बिकॉज इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस थ्रेट्स कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन फॉर होरेका यूनिट्स। सो ये हमारे लिए इनिशियली एक आप कह सकते हैं कैटलिस्ट बन गया। जैसे किसी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट होते हैं, वैसे ही हमारे बिजनेस मॉडल के लिए कैटलिस्ट था। सो व्हाट दे करंटली आर डूइंग, वो लोग क्या करते हैं, वो या तो किसी अनऑथराइज्ड वेस्ट कलेक्शन वेंडर के थ्रू उसे इलीगली डंप कर रहे हैं, या फिर म्युनिसिपैलिटी में किसी ऐसे प्लेयर को पकड़ते हैं जो उनके लिए वो इलीगली डंप कर सकता है, वो उसको कुछ पैसा पे वे कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये जो लो बना है ये फिजिबल नहीं है, बिकॉज देयर कोर बिजनेस इज टू एंटरटेन कस्टमर्स। वो कस्टमर को एंटरटेन करना चाहते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटा इश्यू है, ये बहुत बड़ा इश्यू है। तो उनको अगर अपना वेस्ट ट्रीटमेंट करना है तो उनको कुछ रिसाइकलिंग फैसिलिटी भी लगानी है। सो ये अपने आप में एक अलग बिजनेस है। सो वो लोग, उन लोगों के लिए जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है वो लोग वही ट्राई करते हैं। सो एक केस स्टडी है मेरे पास। एक मोक ऑरेंज होटल है जो ओयो रूम्स के साथ जुड़ा हुआ है। सो दे मंथली जनरेट वेस्ट नियर अबाउट 730 केजी, और हमसे जुड़ने से पहले वो 0% यानी कि बिल्कुल भी सेग्रीगेट नहीं कर सकते थे। वो इलीगली उस वेस्ट को डंप कराने के लिए वर पेइंग 3000 पर मंथ टू सम वेंडर्स, सो देयर वेस्ट कैन बी डंप। और इसके अलावा दे हैव टू पे सम पेनल्टी और फाइन, और यू कैन से ब्राइब टू सम म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर्स। तो वो 15,000 रुपए के आसपास होता है। और beside that they also need to install a incinerator of capacity more than 500 kg per day, जिसका कॉस्ट लगभग 2.5 lakhs के आसपास होता है। और
730 kg waste में they were generating 1650 tons of CO2 और कार्बन एमिशन जिनको हम बोलते हैं. आफ्टर पार्टनरशिप विद अस उन्होंने वेस्ट सेग्रीगेट करना स्टार्ट किया और उनका 520 केजी वेस्ट है वो 4 कैटेगरीज में सेग्रीगेट होता है एंड दे आर अर्निंग 4000 पर मंथ फ्रॉम इकोरैप. इकोरैप को अपना वेस्ट देके उनको 4,500 रुपए पर मंथ के आसपास मिलता है. वी आर providing them all kind of audit reports, how much waste they have generated and how much they carbon emission they have saved. So ये ऑडिट रिपोर्ट वो म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर्स को दिखाते हैं तो उनको कोई पेनल्टी या फाइन डंप नहीं करना होता है एंड वी साइंड ए एमओयू विद ईच एंटिटी. तो वो हमें एज देयर पार्ट वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा उनको इंसिनरेटर इंस्टॉल करने होते हैं क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट इनटू हैजार्डस वेस्ट और अगर उनको सैनिटरी पैड और टिश्यू पेपर इस टाइप के वेस्ट अगर उनको डिस्पोज करने हैं तो वो इंसिनरेटर नीड होती है. बट इसकी कैपेसिटी होती है 100 kg से कम होती है और इसका वन टाइम कॉस्ट 30,000 के आसपास हो और दे हैव रिड्यूस्ड देयर CO2 एमिशन बाय 1450 kg. तो आप बेसिकली फर्क देख सकते हैं कितना फर्क उनमें आया है. So in terms of solution, what we providing these Horeca units, we providing them infrastructure like smart dustbin. हम उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाते हैं. Besides that, we are also providing them training. हम उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं फॉर सेग्रीगेशन कि आप कैसे कैसे इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं. To improve the participation of these employee, इन एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन या जो वेस्ट के कलेक्शन और सेग्रीगेशन में होते हैं, होटल का जो क्लीनिंग स्टाफ या हाउसकीपिंग स्टाफ जिसको हम बोलते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन या उनके मोटिवेशन को उनको मोटिवेट रखने के लिए हम उनको इंसेंटिव्स पे करते हैं पर कैटेगरी कि आपने वेस्ट अगर अच्छे से इंप्रूव किया है, सेग्रीगेशन अच्छा है तो हम आपको इंसेंटिव अच्छे पे करें और we collect their waste and recycle their waste. So this is the process flow. Currently we are not using any tech part. अभी जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो मैनुअल प्रोसेस कर रहे हैं बट आवर टेक पार्ट इज इन टेस्टिंग और डेवलपिंग फेज. सो हम उनके साथ रियल टाइम डेटा शेयर करने के लिए स्मार्ट डस्टबिन जिसमें ऑटोफिल लेवल सेंसर्स और जीपीएस ट्रैकिंग होती है और ये सारा जो भी डेटा है वो हमारे क्लाउड में स्टोर होगा और हमारी एपीआईज हैं जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा लॉजिस्टिक वैन्स के लिए या लॉजिस्टिक इंटरफेस जो भी होगा उसके लिए रूट ट्रैक करके देंगे और एज पर द राउट जो नियरेस्ट लॉजिस्टिक चैन होगी, लॉजिस्टिक व्हीकल होगी, वो वहां से वेस्ट प्रोक्योर करेगी. ड्यूरिंग पिकअप ऑफ दैट वेस्ट वी विल वेट देयर वेस्ट and pay them incentive in the form of digital tokens. अभी हम जो incentives उनको पे कर रहे हैं वो these are cash पे करते हैं उनको but in few months we will start paying them digital tokens. तो digital tokens का distribution होता है वो 80% जो भी tokens होते हैं वो होटल ओनर को जाते हैं और remaining 20% अमाउंट जो होता है वो ग्रीन चैंपियंस को जाता है. और ग्रीन चैंपियंस क्या है, वो होटल के क्लीनिंग स्टाफ या हाउसकीपिंग स्टाफ है जो वेस्ट को अल्टीमेटली सेग्रीगेट करता है. सो ग्रीन चैंपियंस के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता दिया है, आइडिया दे दिया है. ये होटल का ही स्टाफ होता है. बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि होटल ओनर के लिए तो वो पेन पॉइंट है, इशू है, उनको तो उसका सोल्यूशन चाहिए. बट ग्रीन चैंपियन के लिए या हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए वो पेन पॉइंट नहीं है, उल्टा उनके लिए एक बर्डन बढ़ जाता है क्योंकि उनको अभी तक जो वेस्ट एक जगह डंप कर रहे थे वो 4 अलग अलग जगह पे डंप कर रहे हैं. तो इनकी इन्वॉल्वमेंट बिकॉज दे आर द मेन स्टेक होल्डर इन सेग्रीगेशन प्रोसेस, वो सेग्रीगेशन प्रोसेस में हमारे मेन स्टेक होल्डर हैं. अगर हम उनको इग्नोर कर देंगे तो हमारा मॉडल लॉन्ग टर्म में कितना सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये थोड़ा एक क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए. तो हमने उनको पार्ट रखा अपने बिजनेस मॉडल का. So these are the greens. So application of these tokens. So application क्या है? ग्रीन चैंपियन अपने टोकन्स को इंस्टेंटली रिडीम कर सकते हैं या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. फॉर होरेका यूनिट्स
देर आर थ्री प्रोसेस। एक तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो उसे बैंक अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर they can instantly redeem these tokens to buy FMCG supply chain products or upcycle products. And these upcycle products are made out of waste material we collected from that Orica units. और FMCG supply chain vendors जो है वो existing vendors को we are trying to onboard existing vendor into our marketplace or our platform. So how we are treating that, how we are doing treatment of that waste? So हम उसे collect करने के बाद we compile this waste into our godown facility. Then some part of this waste goes into upcycling process and remaining part go for recycling. तो we are not doing in-house recycling process. हम ये waste है वो recyclers को sell करते हैं and in return we generate revenue. So upcycling, I think many of you already know what is upcycling, but बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि ये नया वर्ड हो. So अपसाइकलिंग क्या है? किसी भी वेस्ट मटेरियल को या किसी भी यूज किए हुए मटेरियल को आप किसी हाई वैल्यू किसी भी प्रोसेस के थ्रू किसी हाई वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो अपसाइकलिंग प्रोसेस होती है. सो अगर मैं अपसाइकलिंग के कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूं तो नेक्स्ट इस स्लाइड खत्म होने के बाद मैं आपको अपसाइकलिंग की कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूं कि हाउ वी आर अपसाइकलिंग दैट दिस. सो इस प्रोसेस में होता क्या है, वी form a group of some underprivileged ladies in rural area of Rajasthan. तो हमने जयपुर के आसपास में 2-3 रूरल एरियाज को टैप किया और वहां पे हमने 40 और 42 के आसपास लेडीज को ट्रेन किया एंड वी आर प्रोवाइडिंग देम द वेस्ट मटेरियल. हम उनको वेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं और साथ में हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको हाउ टू मेक अपसाइकल प्रोडक्ट आउट ऑफ वेस्ट. तो ये लोग हमारे लिए वेस्ट मटेरियल से प्रोडक्ट तैयार करते हैं और वी सेल दिस प्रोडक्ट ऑन आवर मार्केट प्लेस. एक तो हम इनको अपने मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो भी चैनल पार्टनर्स हैं इनकी सेलिंग के लिए लाइक हम कुछ ऑफलाइन स्टोर्स पे भी पिच करते हैं, कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं जिनके लिए ऑर्डर पे हम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं. और ये प्रोडक्ट सेल होने के बाद जो भी प्राइसिंग हमारी किसी प्रोडक्ट के लिए डिसाइड होती है वो हम इन लेडीज के साथ शेयर करते हैं. तो हमारा जो शेयर परसेंटेज होता है या आप कह सकते हैं रेशियो होता है वो 60-40% है. इकोरैप 60% रेवेन्यू रखता है और लेडीज को 40% रेवेन्यू मिलता है. सो इन दिस वे ये एक लाइवलीहुड प्रोजेक्ट हो गया अंडरप्रिविलेज्ड सेक्शन के जो भी लोग हैं लेडीज हैं. और ये सब आइडिया कहाँ से आया, तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. वो कुछ इस टाइप से है कि एक्चुअली मेरे किसी रिलेटिव ने अपने बेटी को अच्छा पढ़ाया लिखाया. मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो जो बेटी थी उनकी वो उस गांव में काफी अच्छी पढ़ी लिखी थी और कुछ टाइम बाद उनकी शादी हो गई. शादी होने के बाद जब वो ससुराल गई तो उनके सामने ये चैलेंज था कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती हैं तो उनके पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, अर्निंग क्या होगा, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होगा. तो ये चैलेंज हर गांव की हर लड़की के सामने होता है जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं कि क्योंकि हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ इरिगेशन के लिए वाटर फैसिलिटी इतनी बढ़िया नहीं है और अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो 1000 फीट के आसपास है जिसपे जहाँ से हमें पानी मिलना काफी मुश्किल है. सो इस केस में हमारे पास जो ऑक्यूपेशन की या अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी कम हो जाती है. तो ये वहीं से मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि हम कुछ लाइवलीहुड प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं. तो इससे आप कह सकते हैं कि कॉम्बो बेनिफिट्स जिसको मैं बोलता हूँ कि एक तो आप इको सिस्टम या एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहे हैं, साथ में किसी के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आपने डेवलप की है. सो ये हमारा अपसाइकलिंग प्रोजेक्ट है. इसको हम मुस्कान के नाम से बुलाते हैं इस प्रोजेक्ट को.
2 साल अभी हम 2018 से ऑपरेशनल हैं और इस टाइम में हमने 130 के आसपास होटल्स के साथ काम किया है। और अगर नंबर ऑफ ग्रीन चैंपियंस की बात करूं तो 126 लोग ऐसे हैं ग्रीन चैंपियन हैं जो होटल से जुड़े हैं और वो एक्स्ट्रा अर्निंग उनको मिल रही है। दे आर गेटिंग एक्स्ट्रा अर्निंग्स अलोंग विद द सैलरी दे गेट फ्रॉम होरेका यूनिट्स। अब साइकिल प्रोडक्ट के आसपास बात करूं तो हमने लगभग 48 डिजाइन्स 48 वेस्ट मटेरियल हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनसे हम अपसाइकिल प्रोडक्ट बनाते हैं। और अभी तक वी 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 हैव प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू 73 प्लस लेडीज ऑफ अंडर प्रिविलेज सेक्शन। हमने इतने लेडीज को हमने ट्रेन किया है। एंड इन टर्म्स ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन और ट्रीटमेंट हमने लगभग 1200 मैट्रिक टन वेस्ट को सेग्रीगेशन और ट्रीटमेंट की प्रोसेस में लेके आए। सो इन टैग पार्ट जो टैग हम डेवलप कर रहे हैं, अगर उसकी मैं बात करूं तो इट्स ए 3-वे इंटरफेस ऐप और वेब ऐप जिसमें एक इंटरफेस होरेका है, एक लॉजिस्टिक है और एक एडमिन पैनल है जिसमें रूट ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी होगी। आपके पास एक डेटा होगा नंबर ऑफ पिकअप पॉइंट्स के हिसाब से और you can cover these your APIs will track the shortest path for all of the pickup points जिसमें उबर लाइक फीचर्स होंगे। आपको राइड स्टार्ट करने और एंड करने से पहले एक नोटिफिकेशन होरेका यूनिट्स के पास जाएगा। ग्रीन चैंपियंस के लिए होरेका और होटल्स के लिए ऑटो क्रेडिट सिस्टम होगा रिवार्ड्स का। आप पेमेंट और पिकअप डाटा भी ट्रैक कर सकते हैं। हाउ मच वेस्ट यू हैव गिवन टू इकोरैप और कितना आपने रिसाइकल किया, हाउ मच कार्बन एमिशन यू हैव सेव, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा देयर इज ए मार्केट प्लेस फॉर अपसाइकिल प्रोडक्ट एफएमसीजी गुड्स जहाँ पे वो टोकन्स को रिडीम किया जा सकता है। सो अभी मैंने जो जो वर्ड्स यूज किए उनमें फाइनेंशियल वायबिलिटी और स्केलिंग। सो फाइनेंशियल वायबिलिटी की मैं बात करूं तो बिजनेस मॉडल में आपने जितना एक खरीदने और बेचने के बीच जो मार्जिन होते हैं वहां से उसकी वायबिलिटी डिसाइड होती है। सपोज करो कि आपने 5 रुपए का पार्ले जी खरीदा और 4 रुपए में बेच दिया तो वो फाइनेंशियल वायबल नहीं है वो मॉडल। आपने 5 रुपए का पार्ले जी खरीद के 5.5 रुपए में बेचा तो इट मीन्स दिस मॉडल इज फाइनेंशियली वायबल। सो हमने इस मॉडल को फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए we added the extra buffer of FMCG supply chain and upcycle products. इसके अलावा we reduce the labor intensive task of segregation post collection. अगर आप collection के बाद waste को segregate करेंगे तो इसके दो नुकसान है। फर्स्ट थिंग इज दैट आपकी कोस्ट है जो segregation में बढ़ जाता है। दूसरा हाई कंटामिनेशन लेवल के कारण जो मटेरियल आपने सेग्रीगेट किया है उसकी सेलिंग प्राइस भी काफी कम हो जाती है। सो दोनों आपके लिए नुकसान रहते हैं या बिजनेस की वायबिलिटी के लिए अपोजिट है। और वी कट डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट बाय रूट ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी। सो इन दिस वे वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द फाइनेंशियल वायबिलिटी इन वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर। सो अभी तक वायबिलिटी तो हर किसी के समझ में आती है, पर स्केल की मैं बात करूं या स्केलेबिलिटी की मैं बात करूं तो इसका जो मेजर एप्लीकेशन है वो है अगर आप इसे इन्वेस्टर के सामने अपना बिजनेस मॉडल पिच करते हैं, बिकॉज इन्वेस्टर आर नोट द पर्सन हु फोकस ऑन द नेट प्रॉफिट। उनका जो कोर मॉडल होता है या कोर कॉन्सेप्ट होता है वो स्केलिंग पे होता है। हाउ मच यू कैन स्केल, जितना आप स्केल कर सकते हैं इन्वेस्टर के लिए उतना ही अनुकूल परिस्थितियां बनती है। सो आप अगर ये लॉजिस्टिक की मैं बात करूं, अगर लॉजिस्टिक हम खुद मैनेज करते हैं तो काफी एक सीमित टाइम के बाद आपको लगेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रक्स आर मोर देन 1000 एंड 10,000। तो इस केस में एक एसेट हैवी मॉडल बन जाता है जिसमें बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मैनेज करना होता है। तो हमने लॉजिस्टिक चैनल को भी आउटसोर्स करने का सोचा है। और अगर हम खुद इस वेस्ट को रिसाइकलिंग करेंगे देन इन एवरी सिटी वी हैव टू एस्टैब्लिश
फाइन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसाइकलिंग प्रोसेस, जिसमें अगर आप एक शहर की बात करें तो आपको काफी ह्यूज अमाउंट में कैपिटल चाहिए होता है और काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो अपना खुद का रिसाइकलिंग ना करके एग्जिस्टिंग रिसाइकलर्स के साथ अगर आप पार्टनर होते हैं तो इस केस में ये आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस है। एफएमसीजी सप्लाई चेन की बात करूं या अपसाइकिल प्रोडक्ट की बात करूं तो उस केस में हम दोनों काम हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑनबोर्डिंग एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन वेंडर्स इनटू आवर प्लेटफॉर्म। और एसएचजी की अपसाइकिल प्रोडक्ट के लिए हमने एसएचजी बना दिए हैं जो हमारे लिए प्रोडक्ट रेडी करते हैं। We just take care of their sale part। और अगर बिजनेस को मार्केट करने की बात है, यूजर एक्वायर करने के लिए, तो हमने किसी मार्केटिंग टीम का गठन नहीं किया है, या बहुत बड़ी मार्केटिंग टीम हमारे पास है नहीं अभी। सो वी आर कोलैबोरेटिंग विद ओयो और एयरबीएनबी बिकॉज दे all their offerings are customer side, they don't have any offering for प्रॉपर्टी ओनर्स। अगर आप ओयो की बात करें तो ओयो अभी स्ट्रगल कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं ला पा रहा। उनकी जो भी ऑफरिंग्स हैं वो कस्टमर्स के लिए हैं जो ओयो प्लेटफॉर्म पे आके होटल बुक करते हैं। सो इन दिस केस वी बोथ आर इनटू विन विन सिचुएशन, बिकॉज ओयो हमें प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए अपनी पार्टनर सर्विस के रूप में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो अगर अभी तक मैंने वैसे आपको काफी क्लियर हो गया रेवेन्यू मॉडल का, तो अगर इसमें कोस्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो वन टाइम कोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की होती है, जो हम वेस्ट डस्टबिन या ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट हम प्रोक्योर करते हैं उसके बदले में हम उनको कुछ पैसा पे करते हैं, तो इसको ये एक इन्वेंट्री है, तो ये हमारा कोस्ट स्ट्रक्चर है। सो लॉजिस्टिक एक और कोस्ट स्ट्रक्चर होता है, इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट हमको बियर करनी होती है। इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, हमारी इनकम सोर्स ऑफ इनकम है सेल ऑफ रिसाइक्लेबल वेस्ट, कमीशन फ्रॉम एफएमसीजी सप्लाई चेन प्रोडक्ट, और शेयरिंग मॉडल ऑफ अपसाइकिल प्रोडक्ट जो हम लेडीज के साथ 50-40% में शेयर कर सकते हैं। सो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद यू कि हम ओरेका और ओयो एयरबीएनबी टाइप के पार्टनर्स के साथ मार्केट में जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट कॉल ऑफ एक्शन होता है उनके साथ फिजिकल अपॉइंटमेंट लेना और फेस टू फेस मीटिंग। सेकंड केस में हम अपना प्रोसेस उनके साथ शेयर करते हैं। फोर्थ प्रोसेस में हम डस्टबिन डिप्लॉयमेंट होता है हमारा और साइनिंग ऑफ एमओयू। और फोर्थ प्रोसेस जो होता है उसमें काफी सर्टेन 3 या 4 पिकअप्स के बाद हम उनके साथ ऑडिट रिपोर्ट how much waste they have given to EcoRed। So आपको मेरा मॉडल सुन के लगा होगा कि वी आर डूइंग लॉट ऑफ इनोवेटिंग थिंग्स, लेकिन इससे सिमिलर भी काफी स्टार्टअप्स ऑलरेडी वर्किंग इनटू द वेस्ट सेगमेंट। तो इसमें आपको अगर मैं मेजरली 2 स्टार्टअप्स का नाम बताना चाहूंगा जो इंडिया में काम कर रहे हैं, सास जीरो वेस्ट एंड नेप्रा, जिसको हम लेट्स रिसाइकिल भी बोलते हैं। बट we are slightly different from all of these startups because their major source of revenue is from EPR, extended producer responsibility। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स का अगर मैं EPR का थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना चाहूँ तो जो भी बल्क प्रोड्यूसर्स हैं लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर और PNG, तो इन लोगों को जो भी वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट ये जनरेट करते हैं, ये इनको बायबैक करना होता है मार्केट से, जो कि एक गवर्नमेंट पॉलिसी है। बट दे आर नॉट एबल टू बी, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, वो मैकेनिज्म नहीं है, तो उनके लिए वो बायबैक करना काफी मुश्किल है। सो वो लोग जो है उन्होंने अपने पार्टनर्स सिलेक्ट किए हुए हैं जो उनके लिए वेस्ट को प्रोक्योर करते हैं, प्लास्टिक वेस्ट जो भी उन्होंने भेजा है, और इन एक्सचेंज ऑफ दैट दे पे सर्टेन मनी टू देयर पार्टनर्स। तो जो भी पार्टनर मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको, उनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो EPR पॉलिसी है। हमारा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग। अगर हम अपसाइकिल या रिसाइकिल नहीं करते हैं तो उस केस में हमारे लिए कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं बचता है। अगर ये लोग अगर अपना वेस्ट रिसाइकिल ना करके अगर डंप भी कर रहे हैं, देन स्टिल दे हैव ए सोर्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू।
So this is the team. So I told you a lot of things about myself. So Chandrakant is the partner. He is also from graduate from Delhi University, and he has 2 year of experience in hyper logistic channel. चंद्रकांत इससे पहले मोरबी गुजरात में एक लॉजिस्टिक चैनल ऑपरेट करते थे. So in 2018 he came to me and asked to join. तो ये मेरे लिए भी काफी, क्योंकि लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इस सेक्टर में. तो चंद्रकांत 2018 से टीम में है. मनोज जो है वो मास्टर्स हैं कंप्यूटर साइंस में राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और लगभग इनका 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है वो बिजनेस डेवलपमेंट में है. 3 साल से ये जैनपैक्ट इंडिया के साथ काम कर रहे हैं. और 2018 में हम किसी इवेंट में मिले एंड वी आर बोथ इन सिमिलर सेगमेंट. वो भी किसी वेस्ट सेगमेंट में ही काम कर रहे थे. देन हमारी सिनर्जी मैच हुई तो हमें लगा कि हम साथ काम कर सकते. दीपक जो है वो वेस्ट प्रोक्योरमेंट में अभी काम करते हैं, क्योंकि वेस्ट हैंडलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है. किसी पार्टनर का किस लेवल ऑफ सेग्रीगेशन क्या है और उसे कहाँ रिसाइकिल होना है, कहाँ उसे प्रोक्योर करना है या कहाँ उसे स्टोर करना है, तो ये दीपक देखते हैं. सो अभी तक इस 2 साल की जर्नी में अगर मैं फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की बात करूं तो वो इतने हाईलाइटेड नहीं है या इतने बेटर नहीं कह सकता हूं, बट इन टर्म्स ऑफ पीआर और आप कह सकते हैं मीडिया आर्टिकल्स में, तो हमें काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है. वी आर ग्रेजुएट इंक्यूबेटी ऑफ MIIC, जो कि MNIT का इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर है, और we are the finalist of 10 minute million IIT बॉम्बे. हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के विनर हैं 2019 की, जो हाइपरन्यूरॉन का इवेंट होता है. इसके अलावा वी आर द पार्ट ऑफ एम स्मार्ट सिटी एक्सीलेटर. वी आर द फाइनलिस्ट ऑफ सर्कुलर इनोवेशन जैम 2020. इसके अलावा वर्ल्ड टूरिज्म फॉर्म WTFL फाइनलिस्ट हैं 2019 में, जो कि स्विस ऑर्गेनाइजर है. So this was all about EcoRap, जो मुझे बताना था आप लोगों को, और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए. अगर आप लोगों को कुछ भी आगे फर्दर इस इवेंट के अलावा कभी भी कांटेक्ट करना हो तो ये मेरे कांटेक्ट डिटेल्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. सो थैंक यू कुणाल. थैंक यू अंगराज. किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो देन दे कैन यूज चैट सेक्शन. So we will wait for 1 or 2 minutes so that people will type if they have any queries. Till that time, I have few queries, so Yeah. I'd like to ask you. जब आपने रजिस्टर करने का सोचा था कंपनी, at that time, what difficulties you faced? एक्चुअली इस केस में मैं थोड़ा सा लकी हूँ. पहला रीजन जो है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बिजनेस एक्सपीरियंस था. सेकंड थिंग इज दैट कि मैं आइडिया फेज पे ही MNIT की इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ गया था. तो यहाँ पे जो भी मैनेजर थे उस टाइम पे अवधेश सर जो हेड थे, तो उनसे काफी अच्छी गाइडेंस हमारे पास थी, और थोड़ा एक्सेस था हमें कि हम जब भी चाहें बात करना चाहें, क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर भी नया था और नंबर ऑफ स्टार्टअप्स भी कम थे. तो उस केस में मैं थोड़ा सा अपने आप को लकी मानता हूँ. बट अगर आप पूछना चाहें तो चैलेंजेस बहुत आते हैं स्टार्टअप्स के सामने. बहुत से स्टार्टअप ऐसे हैं जो रेवेन्यू जनरेटिंग है, बट दे स्टिल डोंट हैव GST रजिस्ट्रेशन, और उनको पता भी नहीं है कि दे आर गिविंग इनवॉइस टू देयर क्लाइंट्स, बट दे आर नॉट पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास GST रजिस्ट्रेशन नहीं है. तो काफी चैलेंजेस आता है. तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन या लीगल जो भी हेल्प है, तो उसमें आप जितना जागरूक रहेंगे या अवेयर रहेंगे तो उतना बेटर. Okay.
one of the participant has asked, is it a kind of food waste dependent business? But what is the end product of the eco wrap? Up end product exactly क्या हाँ, बोलना? सो एक्चुअली ये आप हम ये नहीं कह सकते कि हम फूड वेस्ट डिपेंडेंट बिजनेस है, हम बल्क वेस्ट जनरेटर डिपेंडेंट आप कह सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट प्रोक्योरिंग फूड वेस्ट. अभी हमने पायलट किया है कुछ होटल्स के साथ, लेकिन हम फूड वेस्ट प्रोक्योर नहीं करते हैं. एंड प्रोडक्ट की बात करूं, वी आर ए सर्विस. हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मोर ओवर वी आर इनटू सर्विस. हम होटल्स को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं टू फॉर ट्रीटमेंट ऑफ देयर वेस्ट व्हाट दे जनरेट फ्रॉम देयर कमर्शियल एक्टिविटीज. हम उनके ट्रीटमेंट के लिए उनकी एक सर्विस है जो काम कर रहे हैं. और we have some lot of physical products, but they are, we can say, to diversify revenue stream. We add them to diversify our revenue stream. तो एंड प्रोडक्ट है हमारा, वो आप सर्विस कह सकते हैं कि अगर आप वेस्ट जनरेटर हैं तो यू कैन यूज अस एज ए सर्विस. So next question is by Mr. D.S. Barbola ji. So do you have any electronic waste processing facility? नहीं, एक्चुअली वेस्ट, वी आर नॉट इनटू वेस्ट प्रोसेसिंग. क्योंकि मैंने स्केल की जहां तक बात की, अगर आपको स्केलेबल होना है और आप एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट लेके अपने वेंचर को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, देन यू मस्ट बी एसेट लाइट मॉडल. अगर आप इनिशियली एसेट हैवी मॉडल कर लेंगे तो उसके इसमें थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा. आफ्टर ए सर्टेन टाइम, और आप कह सकते हैं कि एक लर्निंग के बाद 5 या 10 साल के बाद, जब आप वी आर प्रोक्योरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट, इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ टू एस्टेब्लिश ए रिसाइकलिंग यूनिट, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. Please explain some technical details of smart dustbins. Okay. If that comes under your. Okay, so smart dustbin are enabled with autofill level sensor, weight sensor और GPS. और ये इनके लिए जो पावर है, पावर सप्लाई होरिका जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको करना होता है. और यहाँ से हम रियल टाइम डेटा गैदर करते हैं. सपोज करो कि आपके पास 2 होटल्स हैं X एंड Y, तो चैलेंज क्या आता है कि आप अगर फोन कॉल के थ्रू जुड़े हैं तो होटल X ने आपको जो भी पिकअप बुक किया है, आपके साथ पिकअप बुक किया है, और आप उसे कलेक्ट करने के बाद गोडाउन आते हैं, तो होटल वाई आपको फोन करेगा वेस्ट पिकअप करने के लिए. सो इन दैट केस आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाता है. तो रियल टाइम डेटा का सेंस इसलिए बनता है कि आपके पास अगर दोनों होटल्स के रियल टाइम डेटा है X एंड Y का, देन यू कैन मेजर दैट कि होटल X 70% है होटल X की डस्टबिन और होटल Y की 60% है, देन both these can be collected at the same time या same pickup. सो ये जो भी डाटा है वो क्लाउड में गैदर्ड होता है, और इस डाटा के बेसिस पे एपीआई जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैक करती हैं कि आप लॉजिस्टिक के लिए ये वाला पाथ चूज करेंगे, देन इन दैट केस ये आपके लिए ज्यादा एफिशिएंट रहेगा ये लॉजिस्टिक रूट. The next question is from Bhal Singh ji. So he has asked, did you get any sponsorship or subsidy from government or any NGO? नहीं, हम ट्राई कर रहे हैं ऐसा. एक्चुअली इनिशियली हम सूरत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में थे, तो क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो पूरा कमर्शियल एंटिटी है और हम इसे कमर्शियली रखेंगे. अभी 80A सेक्शन 80 या इस टाइप का कंपनी या एनजीओ मॉडल हमने अभी इसके बारे में सोचा नहीं है. और गवर्नमेंट के साथ काफी इश्यूज हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म चला रहे होते हैं, और एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको फास्ट और क्विक डिसीजन लेने होते हैं. सो हम गवर्नमेंट के साथ किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है. सूरत स्मार्ट सिटी का इनिशियली हमने पायलट किया था, उसके अलावा और सब्सिडी या स्पॉन्सरशिप का ऐसा गवर्नमेंट के साथ कुछ नहीं है. हाँ, इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से हमें एक डेप्ट फंडिंग मिली थी 10 लाख की, जिसको लोन आप कह सकते हैं. Dr. Vinay ji has asked to share your email details. So I guess that is on your website, right? हाँ, आप वेबसाइट हैं. बाकी अगर मैं चैट में मैसेज टाइप कर सकता हूँ तो मैं मैसेज टाइप कर देता हूँ एक बार.
जरूर। Agaraj ji has a website, EcoRap Jaipur. If you search that in Google, so you will get all the information about their products, about their services, about their contact information. Yeah. So one of the participants, Shri Dattatreya Garge ji, has asked, what are upcycled products? हाँ, तो मुझे आप एक सेकंड का पोज दें ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं अपनी। जरूर। Are you facing any difficulty? नहीं नहीं, एक बस मैं शेयर कर रहा हूँ। So is it visible? Yes. Okay. So basically ये ग्लास बोतल है जो आप देख रहे हैं, ये ग्लास बोतल है जिसपे कुछ लोगों ने पेपर वेस्ट का यूज करके, जिसको हम पेपर मैसी बनाते हैं, तो पेपर वेस्ट से पेपर मैसी बना के वो लोग इससे कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं इनका फिनिश प्रोडक्ट अभी शायद है नहीं, तो काफी अगर आप इसका फिनिश प्रोडक्ट देखेंगे तो काफी अच्छा है, और शायद सोशल मीडिया चैनल्स पे हमने पोस्ट किया होगा, तो वहाँ इनका फिनिश भी आप देख सकते हैं। सो इसके अलावा ये पेपर वेस्ट से बना है जिसको एज ए बाउल और एज ए टोकरी आप यूज करते हैं, और ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काफी पुरानी परंपराएं हैं, मतलब बहुत पहले से कर रहे थे, पर उस टाइम पे इतनी वैल्यू थी नहीं, हम भी इतनी वैल्यू नहीं करते थे, हमें नहीं पता था कि ऐसे वेस्ट रिसोर्स को हम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये उसको एज ए टोकरी वो यूज करते हैं, और साइज आप जो बनाना चाहें उसी साइज का वो बन जाता है। सो ये पेपर वेस्ट और मुल्तानी मिट्टी, आप न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड जो भी है उसको आप थोड़ा सा भिगो के उससे पल्प बना के और फिर उसके बाद इसको सेप दी जाती है, तो ये इस टाइप का एक प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा जो स्क्रैप टायर होते हैं उससे भी काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, ये सारे हैंडमेड हैं। इसमें अगर किसी स्मॉल टूल और किसी इक्विपमेंट का जरूर यूज होता है, बट मेजरली दे आर हैंडमेड। इसमें थोड़ा मशीन का ज्यादा यूज किया है टूल का। ये एक कैलेंडर है जिसको जो वेस्ट वुड से बना है। सो ये इसमें हमारे पास लगभग मोर देन 48 प्लस वेस्ट मटेरियल है जिसको हम इस टाइप से अपसाइकिल करते हैं। सो ये कुछ सीट्स बनाई हैं स्क्रैप टायर से, आप देखेंगे तो इसे डिजाइन कर सकते हैं, हम कस्टमाइज भी करते हैं कस्टमर की डिमांड के हिसाब से। ये एक सीसो है जो इसके बीच में अभी अभी फिनिश नहीं है, पर इस पे बच्चे बैठ के झूल सकते हैं। ये किसी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल को हमने डोनेट किया था, उसके लिए बना हुआ है। ये अगर आपको बैक सपोर्ट में कुछ प्रोडक्ट चाहिए, या ये ग्लास बोतल से बने हुए आइटम है और ये स्क्रैप टायर से, सो सारा जो वेस्ट मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट बने हैं वो वेस्ट मटेरियल से बने हैं। ये वेस्ट टेक्सटाइल वेस्ट जो आता है उससे बना हुआ फ्लोर मैट या डोर मैट कुछ बोलते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स हैं, और ये भी ग्लास बोतल पे बने हुए प्रोडक्ट हैं। तो इसमें अभी हमारे पास लगभग 73 के आसपास टोटल जो है। तो अभी मैं जो फिनिश की बात कर रहा था, तो उन्होंने ग्लास बोतल को फिनिश करके कुछ ऐसा बना दिया जाता है, तो वो लोग कुछ ऐसा बना रहे हैं, और उनका जो रेवेन्यू, उनको जो उनकी जो अर्निंग है वो लगभग 8 से 10,000 के बीच वो अभी अर्न कर रही हैं, जिसमें उनको 3 से 4 घंटे काम करना होता है, और जितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो तैयार करते हैं उनकी अर्निंग उस हिसाब से बढ़ जाती है और कम भी हो जाती है। सो ये कुछ प्रोडक्ट
थे जो मैंने, हालांकि इससे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट इससे ज्यादा हैं, बट मेरे पास अभी फोटो अवेलेबल नहीं है उनकी। Okay, so Dr. Dattatreya Garge ji has got his answer, I guess. I have one more question. So, do you provide any safety gadgets or training kind of a thing to the green champions that you are working with, or of hotels? हाँ, एक्चुअली वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम सेफ्टी गैजेट्स, हम ट्रेनिंग उनको जरूर प्रोवाइड करवाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दे नीड टू वर्क ऑल टाइम इन ए डे, क्योंकि वो होटल के एम्प्लॉइज हैं, दे आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ V4 है। तो हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और कैसे कैसे वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे वो सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली वेस्ट हमें सेग्रीगेट करवाना है, बट टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ और जो भी सेफ्टी से रिलेटेड है वो होटल एडमिनिस्ट्रेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द होटल्स करते हैं कि वो उनको कुछ एप्रेन पहनाते हैं, ग्लव्स भी देते हैं जो भी लोग काम करते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया है। If anyone wants to ask any further questions, then please type it into the chat box. So I just wanted to ask one more question. Was there any impact of lockdown to your business? हाँ, इनिशियली एक्चुअली ये इशू इसलिए हमारे साथ है बिकॉज वी आर टारगेटिंग होरेका और होटल्स। तो अगर आपके यहाँ लॉकडाउन मई में लगा है तो हमारे यहाँ लॉकडाउन फेब में लग गया है। होटल इंडस्ट्री काफी पहले से ही इस कस्टमर सेगमेंटेशन या अपना जो भी रेवेन्यू है तो उससे काफी पहले सफर कर रही थी। और इसके लिए हमने जो हमारी अगर फाइनेंशियल वाइबिलिटी की बात करूं, लॉकडाउन है तो उसमें रेवेन्यू भी कम हुआ होगा और कुछ टाइम के लिए हमने ऑपरेशंस को भी पॉज किया था। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट है जिसको मैं मुस्कान बोलता हूं, वो जो अपसाइकलिंग हम करवाते हैं, तो उस टाइम पे वो हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू था फॉर सस्टेन करने के लिए, इस बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। और इसने ना केवल हमारी हेल्प की बल्कि उन लेडीज की भी हेल्प करी, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर जो भी फैमिली में अर्न करता है, उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं कोई और भी। तो उन केस में उनके पास भी कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं था लोगों के पास, तो उस केस में वो बड़ा अच्छा रोल प्ले किया मुस्कान प्रोजेक्ट में। तो ये काफी कुछ लोग हैं वो उससे एक सस्टेन करने के लिए एक अच्छा ठीक ठाक इनकम उससे जनरेट कर रहे थे। So I guess there are no more questions left. With this, I again thank Shri Angaraj ji for having such a wonderful session, for sharing his own experiences, starting from the scratch till what he has built up now. We all got inspiration from your talk, and hopefully we will collaborate in, maybe I don't know, but we hope that we will collaborate in certain ways with you. Along with that, we will take inspiration to take away something from this session, and we will build something like you have done in Jaipur. With this, I close this session. I again thank Shri Angaraj ji for थैंक यू कुणाल। एंड सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ये कहना चाहूंगा मैं कि एक्चुअली मेरा भी मतलब बोलने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा नहीं है कभी, तो ये आप कह सकते हैं मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी जहाँ मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिला है बोलने के लिए। तो अगर किसी की भी सेंटिमेंट्स को मैंने हर्ट किया तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, एंड थैंक कुणाल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। Thank you, Angaraj ji. Thank you. In chat section, I have posted a link for attendance. If you have filled that in earlier section, then there is no need of filling it again. If you haven't, then you can fill it now. Only once you have to fill in a day. So with this, if everybody has filled it, yeah. So with this,
I close today's session and today's second session as well. We will meet tomorrow at 11 sharp. Tomorrow we will be having Shri Girish Devgaokarji. He is the Senior Manager at Bhau Institute of Innovation, Entrepreneurship and Leadership. That is the unit of College of Engineering Pune, which is also one of the reputed colleges in India. And that unit of COEP has also incubated many successful startups. So obviously, we will make sure that there should not be a repetition of what you have heard in today's first session and what you're going to hear in the next session. So that will be taken care of. There will be minimum of repeatability in each session. In each session, you will be hearing different experiences. You will be meeting different people. So there will be lots of takeaways from each session. So we will meet tomorrow at 10:55 a.m. With this, thank you all and have a nice day.